Good morning students, welcome back to our third part of class 7th English, chapter number 6, Expert Detectives. So this part of today's chapter is a strange thing about Mr. Nath. As you all know, this chapter is written by Sharda Dwivedi, and in the last previous parts we read about a brother and a sister, Maya and Nishad, who was also called Seven by his nickname. Both of them, they had to solve a mystery about Mr. Nath. Who was Mr. Nath? He was a patient of their mother. Mother किसकी? माया की और निशाद की. उनकी ममा क्या थी बेटा? डॉक्टर थी. अब उनकी ममा के पेशेंट थे मिस्टर नाथ, और मिस्टर नाथ के बारे में माया का ये थॉट था कि ये कोई क्रिमिनल है, कोई भगौड़े हैं, पुलिस से भागे हुए हैं. ठीक है, तो वो उनके बारे में इंक्वायरी करना चाह रही है, कुछ सुराग जुटाना चाह रही है और एक डिटेक्टिव बनकर उनकी गुत्थी सुलझाना चाह रही है माया. ठीक है, अब हमने लास्ट पार्ट्स में ये पढ़ा था कि जो निशाद है उसको मौका मिला था उनके वहाँ जाने का. जब उसकी ममा अपने क्लिनिक जा रही थी तो वो मिस्टर नाथ के यहाँ गया था और नाथ उनको पहचान गए थे. ठीक है, अब क्या होगा आगे इस पार्ट में पढ़ेंगे. माया ये सोच रही थी कि काश उसको भी जाने का मौका मिलता, पर वो नहीं जा पाई थी क्योंकि उसको अपनी एक स्कूल फ्रेंड के साथ इवनिंग स्पेंड करनी थी. So Maya was not able to visit Mr. Nath. Only Nishad could do that, and she asked Nishad that I hope you asked so many questions to him. But Nishad said, I did not get a chance to talk to Mr. Nath very much, and I did not peep into his house or his trunk, and I could not make out what all he is having in his house, where the money is kept, where all the stuff is kept, so that they could find out whether he is a criminal or not. But one thing what Nishad said to Maya, that Nishad got a chance to talk to the person who used to give meals to Mr. Nath in the Shankar's house, and that Ramesh, that boy Ramesh, he used to live downstairs in the restaurant and he used to give him the meals. अब निशाद ने माया को बताया कि मैं मिस्टर नाथ से तो ज़्यादा नहीं बात कर पाया, ना ही मैं उनके घर के अंदर जाके झांक पाया, और ना ही वो ट्रंक जिसके अंदर हम सोचते थे कि वो पैसे छुपा के रखते हैं, ना तो मैं उसमें झांक पाया. पर मुझे एक मौका मिला रमेश नाम के एक लड़के से मिलने का जो मिस्टर नाथ को खाना देने जाता था या चाय देने जाता था. एंड ही गॉट टू नो few things about Mr. Nath. ये सब सुनकर माया बहुत खुश हुई, and she patted the back of her brother and said, well done Mr. Detective, you have done a great job. And she was very happy. Now Maya wanted to know what Ramesh told her brother, and now Nishad started telling her that Mr. Nath is having 2 meals a day, 2 teas a day, and he eats simple food, nothing special, and the same type of food is repeated every time. He is tipping well. He gives very good tip to the tender, to the person who is providing him the food, and he pays in cash. So this was all what Nishad told in the last part. Now in this part we will come to know some more things about Mr. Nath. इस part में हमें Mr. Nath के बारे में कुछ और चीज़ें जानने को मिलने वाली हैं. तो are you curious to know? आप जानना चाहते हैं कि क्या होगा अब आगे इस पार्ट में? चलो, we will start with this part, a strange thing about Mr. Nath. तो कुछ चीज़ें तो बता दी थी निशाद ने प्रीवियस पार्ट में. अब इस पार्ट में भी वो कुछ स्ट्रेंज चीज़ उसके बारे में बताने वाला है जो माया को हेल्प करेगा क्लूज ढूंढने में. स्टाउट क्या होता है? मोटा. स्ट्रॉन्ग एंड थिक. ठीक है, हेवी या हेल्दी पर्सन. Spectacles here, something that is impressive or shocking to look at. But in this chapter's reference, spectacles का मतलब है चश्मा. ठीक है. Ramesh told me something very strange, Maya. अब कौन कह रहा है? सेवन या निशाद अपनी सिस्टर को बता रहा है that the person whom he met in the restaurant and who used to give food to Mr. Nath, he told a strange thing about Mr. Nath to Seven. रमेश ने एक बहुत ही strange सी बात बताई है सेवन को. वो क्या बताई है? Seven added, almost every Sunday, हर संडे को क्या होता है? He carries 2 lunches to Mr. Nath's room.
क्या होता है बेटा, संडे को क्या होता है, मिस्टर नाथ के रूम में 2 लंच प्लेट्स जाती हैं, 2 लंच प्लेट्स। अब ऐसा कैसे हो सकता है, मिस्टर नाथ तो अकेले ही रहते थे ना, उनके साथ तो कोई रहता ही नहीं था, और हमेशा वो एक एक थाली ही मंगवाते थे, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में, और एक चाय सुबह, एक दोपहर में। फिर ये 2-2 थाली लंच की हर संडे क्यों? आ जाओ पता लगाते हैं। He carries 2 lunches to Mr. Nath's room and the same man is with him each time. और हर संडे एक ही आदमी उनके साथ होता है हर संडे को उस समय, ठीक है। He is tall. Now this is the description of that person who comes to visit Mr. Nath every Sunday. अब इन लाइन्स में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उस इंसान का जो मिस्टर नाथ से मिलने आते थे हर संडे को। अब वो कैसे दिखते थे, आओ हम देखते हैं। He is tall, वो लंबे थे। Fair, उनका कलर फेयर था। Stout, he was healthy and wear spectacles, और वो क्या पहनते थे, स्पेक्स पहनते थे या चश्मे पहनते थे। रमेश says his visitor talks a lot unlike Mr. Nath who hardly speaks। और रमेश ने एक और बात बताई, that visitor of Mr. Nath is very talkative unlike to Mr. Nath who doesn't talk much। रमेश ने ये बताया निषाद को कि जो विजिटर उनके यहाँ आते थे, जो लंबे से, गोरे से, हेल्दी से थे, चश्मा पहनते थे, वो बहुत ही टॉकेटिव थे, बहुत बातें करते थे। मिस्टर नाथ से बिल्कुल ऑपोजिट, क्योंकि मिस्टर नाथ तो बहुत ही कम बोलने वाले इंसान थे, ठीक है। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम। नाउ माया इज अगेन हैप्पी, और वो कह रही है शाबाश, बहुत अच्छा किया निषाद तुमने। Now that we have made some progress with our inquiries, we will have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook। अब माया कह रही है कि बहुत अच्छा किया तुमने, ये सारी बातें जुटा ली, अब हमारे पास कुछ इकट्ठा हो गया है मैटर हमारी इंक्वायरी स्टार्ट करने का और ट्रैप करने का उस धूर्त इंसान को। ट्रैप करना मीन्स उसको पकड़ना। किसको? क्रूक। हु इज द क्रूक? धूर्त इंसान किसकी बात हो रही है? मिस्टर नाथ की। अभी तक तो ये क्लियर ही नहीं हुआ है कि मिस्टर नाथ बेचारे कोई क्रिमिनल हैं या नहीं, बट माया का जो डिटेक्टिव माइंड है वो तो दौड़ लगाता जा रहा है और वो कुछ ना कुछ फाइंड आउट करके ही रहेगी, इट सीम्स। ओके, सॉर्ट आउट मतलब उसको क्लियर करना, उसका हल निकालना। ओके, सॉर्ट आउट मीन्स अरेंज सिस्टमैटिकली, ठीक है, या तो अलग अलग चीज़ों को एक पर्टिकुलर वे में रखना, ठीक है, ताकि हम, जैसे क्या होता है बेटा, हमारे पास ब्लैक ग्रेप्स हैं और ग्रीन ग्रेप्स हैं, सो वी विल सॉर्ट आउट सेम सॉर्ट ऑफ ग्रेप्स। तो क्या करेंगे, ग्रीन ग्रेप्स अलग रख लेंगे और ब्लैक ग्रेप्स अलग रख लेंगे, उसको भी सॉर्टिंग बोलते हैं, ठीक है। और सॉर्ट आउट मतलब मैटर को सॉल्व करना भी कहते हैं। क्रूक, क्रिमिनल, ठीक है, क्रूक क्या होता है? धूर्त या क्रिमिनल इंसान। रिटॉर्टेड, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिटॉर्टेड? To reply quickly to what somebody says in an angry or amusing way। किसी का तुरंत से जवाब देना। अगर किसी ने कुछ कहा और आप उसको, उसकी बात काटते हुए तुरंत से आप जवाब दे रहे हो, उसकी बात को गलत साबित करते हुए, that is called retorted, alright? House breaker, हाउस ब्रेकर क्या होता है बेटा? A person who breaks into and enters a house with a felonious intent। एक कोई इंसान जो आपके घर में घुसता है गलत इंटेंशन से, गलत उसके मन में कोई विचार है और इस वजह से वो आपके घर में घुसा है, चाहे तो वो चोरी का मकसद हो, लूट का मकसद हो या कोई किडनैपिंग हो, व्हाटएवर, ठीक है, उसको बोलते हैं हाउस ब्रेकर। somebody who enters your house with a wrong intention, that is a house breaker। okay, now let's see this again। how do you go on Maya? 7 side, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब तुम क्या करने वाली हो माया? वो अपनी बहन को बोल रहा है। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रूक, ही लुक सो ऑर्डिनरी। वो कह रहा है कि अब तुम क्या सोच रही हो माया, मुझे ये तो बताओ, तुम कैसे उस इंसान के ऊपर इतना शक कर सकती हो? हाउ कैन यू थिंक सो बैड और नेगेटिव अबाउट दैट पर्सन एंड हाउ कैन यू थिंक दैट ही इज अ क्रूक? तुम्हें कैसे लग रहा है कि मिस्टर नाथ क्रूक है? क्योंकि जो 7 है उसको ऐसा नहीं लग रहा बेटा,
है ना, उसको कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि मिस्टर नाथ जो हैं वो कोई भूखे प्यासे इंसान हैं जो स्टार्व कर रहे हैं और जो सीधे साधे हैं, अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनकी मम्मा से, है ना। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रूक, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि वो एक धूर्त इंसान है मिस्टर नाथ। ही लुक सो ऑर्डिनरी, वो बिल्कुल ही आम इंसान जैसे ही तो हैं, फिर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, I retorted, and Maya stopped his sentence and said, criminals जो होते हैं वो भी आम इंसान जैसे ही दिखते हैं लड़के। वो अपने भाई को कह रही हैं, ठीक है, कि क्रिमिनल्स जो होते हैं वो भी एक आम इंसान जैसे ही दिखते हैं, उनके कोई सींग नहीं होते अलग से, उनका कोई और डिस्क्रिप्शन नहीं होता, दे आर ऑल्सो सिंपल और ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स ओनली। Did you see the picture of the Hyderabadi housebreaker in the papers yesterday? Now she is giving an example of a criminal and she is asking her brother that did he see the picture of a Hyderabadi housebreaker in the newspapers a day before? क्या कह रही है माया? माया निशाद को कह रही है कि अरे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके मुंह पे थोड़ी लिखा है कि वो क्रिमिनल है, वो भी आम इंसान ही होते हैं। अपने जो कल के अखबार में तुमने वो हैदराबादी हाउस ब्रेकर की फ़ोटो नहीं देखी जो घर में घुस गया था चोरी वोरी या लूट करने के लिए, उसकी शक्ल भी तो सिंपल ही थी। वो ऐसे समझा रही है निशाद को, ठीक है। He looked like any man on the street, और वो जो हैदराबादी हाउस ब्रेकर है जिसकी पिक्चर उन्होंने एक दिन पहले न्यूज़पेपर में देखी थी, वो एक आम इंसान की तरह ही लग रहा था। ओके, द पिक्चर और द image of the housebreaker, Hyderabadi housebreaker in the newspaper was like any simple man. निशाद looked doubtful, but still निशाद looked very doubtful. लेकिन फिर भी निशाद को उस चीज़ में डाउट था कि जो मिस्टर नाथ हैं वो एक क्रिमिनल हैं। उसको लग रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। Let's take the meanings first. Blinding मतलब to make somebody unable to see. Blinding मतलब किसी को नहीं दिख पाए, इस तरह से कुछ। Flashes to move very fast. Flashes का मतलब होता है जल्दी जल्दी हम लाइट्स देखते हैं ना, लाइट्स ऑन ऑफ, that is called flashes. Roaring, making a very loud noise. ठीक है, दहाड़ना या गर्जना, that is called roaring. Downpour. Downpour क्या होता है बेटा? A heavy sudden fall of rain. एकदम से कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, all of a sudden so much of water comes down from the clouds. एकदम से क्या होता है, अचानक से बहुत सारा पानी क्लाउड्स से नीचे आने लग जाता है, बहुत तेज बारिश स्टार्ट होने लग जाती है, that is called downpour. बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई पानी उड़ेल दिया हो, ठीक है, that is called downpour. The monsoons broke the next day. Dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. Now what happened the next day? अगले दिन क्या हुआ बेटा? बारिश आने लग गई थी, ठीक है, मॉनसून आ गए और अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। मॉनसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे, अगले दिन बारिश स्टार्ट हो गई, मॉनसून्स आ गए थे। एंड डार्क क्लाउड्स, जो काले घने बादल थे, दे अकम्पनीड मतलब उसके साथ में, किसके साथ में आए? ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग। ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग मतलब जो बिजली जो चमक रही थी वो कैसी, मतलब हमें कुछ दिख ही नहीं रहा था बाहर, हमारी आंखें एकदम से ब्लाइंड हो गई थी, इस तरह से बिजली चमक रही थी और गर्जना हो रही थी, बहुत सारा शोर हो रहा था। और क्या हो रहा था? रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर बर्स्ट, और बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही थी बहुत तेज, और विद ऑल देयर फ्यूरी मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बादल कोई गुस्से में है ना, फ्यूरी मीन्स एंगर। एंड फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद अ हैवी डाउनपोर, और बहुत तेज पानी जो आया क्लाउड्स में से, उसकी वजह से क्या हुआ बेटा? ऑल द स्ट्रीट्स वर फुल ऑफ वाटर, सभी जो गलियां थी, रास्ते थे, वो पानी से लबालब हो गए, भर गए थे, इतना पानी आ गया था, ठीक है। स्कूल वॉज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर समर हॉलीडेज, अभी क्या होना था? नेक्स्ट डे स्कूल खुलने वाले थे। रीओपन्ड मतलब दोबारा से खुलना, ओपन मीन्स खुला हुआ है, रीओपन मतलब अभी बंद है लेकिन अब खुलने वाला है, रीओपन दोबारा से खुलना। तो स्कूल्स आपके समर ब्रेक्स के बाद स्कूल्स रीओपन होते हैं ना जुलाई में, दैट इज रीओपनिंग, ओके।
and after summer holidays schools had to reopen. Schools खुलने वाले थे, but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. But what happened? Due to the heavy downpour, all of a sudden the traffic was not able to move on the roads. इतना पानी आ गया था रोड्स पे कि ट्रैफिक को चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, व्हीकल्स बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे थे. तो अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे उन लोगों को मिल गया. अनएक्सपेक्टेड मीन्स जिसकी आशा नहीं की थी, क्योंकि नेक्स्ट डे तो उनको स्कूल ही जाना था ना, समर ब्रेक्स तो ख़त्म हो गए. अनएक्सपेक्टेडली हमको छुट्टी मिल गई क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा था. I thought I would spend the time usefully and Maya, she was a brilliant girl. She thought that she should spend the time usefully. उसने सोचा कि मैं मेरा जो समय ये मुझे आज का मिला है, जो स्कूल नहीं जाने का मौका है, तो इस टाइम को मैं अच्छे से यूटिलाइज करूँ, यूज़ करूँ. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. And what did Maya do? She sat on a table and chair. She took a piece of paper and in her bedroom she was ready to write down the points about what? Mr. नाथ. जो उन्होंने क्लूज जोड़े थे वो क्लूज वो जॉट डाउन करने वाली थी अपने पेपर्स के ऊपर. सो शी वॉज रेडी टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग. आज का पार्ट आपको समझ में आया. मिस्टर नाथ के बारे में हमें एक नई चीज़ पता चली, दैट मिस्टर नाथ was visited by a person every Sunday and he was tall, fair colored, he was stout and he had worn spectacles and he was very talkative. बहुत ही बातूनी, लंबे, गोरे और मोटे से कोई अंकल आते थे मिस्टर नाथ से मिलने और वो बहुत बातें करते थे. मिस्टर नाथ तो नहीं करते थे इतनी, पर वो बहुत करते थे. ऐसा रमेश ने बताया था निशाद को. अब अचानक से क्या हुआ, बारिश स्टार्ट हो गई अगले दिन जब उनको स्कूल जाना था समर वेकेशंस के बाद. और क्या हुआ, सड़कें पानी से भर गईं, व्हीकल्स नहीं चल पाए, तो उन लोगों को ऑटोमेटिकली एक छुट्टी मिल गई. और माया ने सोचा क्यों ना मैं छुट्टी वाला दिन आज यूटिलाइज करूं, और उसने क्या किया, एक पेपर पेन लेके बैठी अपने बेडरूम में टेबल चेयर पे और उसने पॉइंट्स लिखना स्टार्ट किया. नाउ वी विल रीड what list is she going to make to prove that Mr. Nath is a criminal. ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में. Until then, every one of you take care. Have a great day, beta.